Hello everyone watching this video. Today I am going to discuss about the theory of consumer behavior, which is the second chapter in your economics. So we will begin with theory of consumer behavior. The chapter has been entirely divided into two parts. That is part 1, which is cardinal utility analysis and marginal utility analysis, and part 2, which is indifference curve analysis. In this part we will see utility, law of diminishing marginal utility, consumers equilibrium, one commodity case and two commodity case. So first let's begin with the topic, which is utility. Utility means what? Utility is the want satisfying power of any commodity. It is the satisfaction that a consumer can expect to get from the consumption of some units of the commodity. It is the satisfaction that a consumer gets from the consumption of the commodity. Now, features of utility: subjective. First of all, utility is subject to a person's need. It is relative to a person's need. इट मीन्स वॉट, जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उस गुड्स के डिमांड को वांट को सेटिस्फाई करने का, उतना ज़्यादा उसका यूटिलिटी होगा. नेक्स्ट इज रिलेटिव. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. द सेम पर्सन may derive different utility from the same commodity in different means of time. जब ज़्यादा यूटिलिटी, ज़्यादा ज़रूरत होता है कमोडिटी का, तब ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव करते हैं. जब कम ज़रूरत होता है कमोडिटी का, तो कम यूटिलिटी डिराइव करते हैं. एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज utility is not measurable. Utility satisfaction, there is no numerical expression, or there is no yardstick, or there is no mathematical expression to express the utility in mathematical terms or numerical terms. So utility is just a satisfaction. It is an abstract component. And utility is different from usefulness. How utility is different from usefulness? Because यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी. अब अगर तुम्हारा वांट को एक स्पीरियस गुड्स के लिए है तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा. लाइक कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, कोकेन, ये सब क्या है? ये सब यूजफुल कमोडिटी नहीं है, बट इसमें भी यूटिलिटी होता है. एंड देर इज नो मॉरल और एथिकल कोनोटेशन इन यूटिलिटी. यूटिलिटी डज नॉट हैज एनी मॉरल और एथिकल कोनोटेशन. सो यूटिलिटी का कोई मॉरल या एथिकल बाउंडेशन नहीं होता. नेक्स्ट आता है कंसेप्ट में, टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट है. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. It is a total satisfaction derived by the consumer from the consumption of some units of the commodity. And marginal utility on the other hand is the net addition to the total utility. It is the net addition to the total utility by a consumer by consuming one additional unit of the commodity. So marginal utility is the additional satisfaction that a consumer derives from the additional unit consumed. MUN is equal to TUN minus TUN minus 1. That is, MUN is the marginal utility of nth unit, TUN is total utility of n units, and TUN minus 1 is total utility of unit preceding the nth unit. So MU is equal to change in TU by change in quantity. So delta TU by delta Q. और क्वांटिटी का जनरली हम लोग 1 लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चेंज इन TU ही रहेगा, नीचे में 1 रहेगा. नाउ नेक्स्ट वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. एज आई हैड सेड यू, marginal utility is a net addition to the total utility. So total utility or marginal utility are interrelated. So one can attain marginal utility just by subtracting the total utility of the latter units from the former ones. Subtracting the total utility of former units from the latter ones. मतलब क्या है? अगर सपोज कर लो, अब जैसे यहाँ पर देखो, so MUN is equal to TUN minus TUN minus 1. और TUN कैन बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल MUNs. सम ऑफ ऑल MUNs. अब देखते हैं इसका ग्राफिकल मैथमेटिकल रिलेशनशिप एक टेबल से देखने का कोशिश करते हैं. सी यूनिट्स ऑफ पेन कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर 1 2 3 4 5 6 7. नाउ सपोज इफ द फर्स्ट यूनिट गिव्स अ टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स, सेकेंड यूनिट गिव्स अ टोटल यूटिलिटी ऑफ 18 24 28 30 30 and 28. So totality increases but at a decreasing rate, and thereafter after the 6th unit it decreases. Now what can be the marginal utility? The first unit will be, total utility and marginal utility is same for the first unit, so it will be 10.
for second unit 18 minus 10, for third unit 24 minus 18, for fourth unit 28 minus 24, for fifth unit 30 minus 28, for sixth unit 30 minus 30, that is 0, and for seventh unit it will be minus 2. So ऐसे ही कैलकुलेट होता है मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ ग्राफिकल रिलेशनशिप, when TU increases but at a decreasing rate, marginality is increasing, marginality tends to diminish. It means what? When TU is increasing, TU in the table you can see that TU is increasing, but it is increasing at a diminishing rate. So marginal utility is decreasing. In the graph also you can see TU is upward sloping but concave towards the origin. It means that this curve is increasing but at a decreasing rate, and marginality is downward sloping. Correspondingly in panel 2 you can see that marginality is downward sloping. Until the fifth unit of the commodity. Now when TU reaches its maximum, marginality is 0. Now when on the consumption of sixth unit, in tabular form also you can see on the consumption of sixth unit TU is maximum. फिफ्थ यूनिट और सिक्स यूनिट का देखो TU सेम है, तो मतलब यहाँ पर सिक्स यूनिट पे TU मैक्सिमम है. सो ऑन द कंजम्पशन ऑफ सिक्स यूनिट TU इज अ फ्लैटर कर्व. TU is a flatter curve. So marginality touches the x-axis, which means that marginality is 0 on the consumption of sixth unit of the commodity. And when TU is falling, marginality becomes negative. So beyond the consumption of 6 units, when TU decreases, in the tabular representation also it is there. On the consumption of 7th unit, TU is 28 and marginality is minus 2. So when we plot it graphically, we can also get that when beyond the consumption of 6 units, marginality turns negative. So now let us take the law of diminishing marginal utility. Now what is the law of diminishing marginal utility? The law of diminishing marginality states that other things remaining constant, the consumer's utility goes on decreasing from additional consumption as and when he goes on increasing the consumption of the units. It means what? That the marginal utility goes on decreasing with the increase in the consumption of यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, तो जैसे जैसे कंज्यूमर्स कमोडिटी को कंज्यूम करने लगता है वैसे वैसे उसका मार्जिनलिटी डिक्रीज होने लगता है. बट दिस लॉ वर्क्स अंडर सर्टेन एजम्पशंस. फर्स्ट एजम्पशन इज दैट द यूनिट्स ऑफर्ड फॉर कंजम्पशन मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स. द सेकेंड एजम्पशन, द यूनिट्स ऑफर्ड मस्ट बी ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी. अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी, ऐसा कुछ होना चाहिए. द थर्ड एजम्पशन इज there is no change in the taste and preferences of the consumer. The fourth assumption is marginality is measurable in numerical terms. तभी ऐसा हो पाएगा. And there is no change in the prices substitutes also. और फिफ्थ assumption है कि continuous in consumption होना चाहिए. सिक्स्थ assumption है continuous in consumption होना चाहिए. consumption का continuous होना चाहिए. Now we see graphically the diminishing marginal utility curve. तो अब ये लॉ का एक्सप्लेनेशन है. तो सबसे पहले कि मार्जिनल यूटिलिटी क्यों डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन द कमोडिटी कंज्यूम्ड. जैसे जैसे कमोडिटी कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी कम क्यों हो रहा है. सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है इस चीज़ का, जब हम लोग कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का वांट सेटिस्फाई हो जाता है कुछ ना कुछ. तो अगर कुछ वांट सेटिस्फाई हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट कमोडिटी से कम यूटिलिटी डिराइव करेंगे. सबसे पहला एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट whenever we want any commodity, the most important requirement will be fulfilled first, followed by the next important requirement. जैसे इलेक्ट्रिसिटी, अगर टंकी में पानी नहीं है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी दो तीन दिन के बाद अगर आ रहा है तो पहले हम टंकी में पानी भरेंगे फिर और कोई काम करेंगे उससे. ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल हो रहा है तो ज़्यादा यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं, और लेस इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट बाद में फुलफिल हो रहा है तो लेस यूटिलिटी डिराइव कर रहे हैं. नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. A consumer will be in equilibrium when he purchases that much amount of a commodity for which the marginal utility of the commodity is equal to the price of the commodity. मतलब क्या है यहाँ पर,
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी और द एडिशनल सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी. सो अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी जो कंज्यूमर को मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है? क्योंकि वो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, और कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए उसको क्या पे करना पड़ रहा है? प्राइस. कमोडिटी कंज्यूम करने के लिए उसको पे करना पड़ रहा है प्राइस. तो अब अगर कोई कंज्यूमर अगर प्राइस पे कर रहा है और उसके बदले में उसको यूटिलिटी मिल रहा है, तो मतलब वो यूटिलिटी से प्राइस सिर्फ इसके लिए पे कर रहा है क्योंकि उसको यूटिलिटी मिल रहा है. सो इसका मतलब क्या है? एक रैशनल कंज्यूमर उतना ही प्राइस पे करना चाहेगा जितना कि उससे उसको यूटिलिटी मिले. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं हम लोग. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मार्जिनल कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम वेयर द पॉइंट वेयर द MU कर्व कट्स द P लाइन. P लाइन इज द प्राइस लाइन. यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस में है और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑकर्स एट पॉइंट T वेयर MUX इज इक्वल टू PX और मार्जिनल ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल टू द प्राइस, और क्वांटिटी जो बाई करेगा वो होगा OQ. अब कमोडिटी क्वांटिटी यही क्यों खरीदेगा वो? सो एट इनिशियल यूनिट्स क्या हो रहा है? देखो, एट इनिशियल यूनिट्स MU इज ग्रेटर देन P. एट इनिशियल यूनिट्स MU इज ग्रेटर देन P. तो इसका मतलब क्या है? उसको प्राइस कम पे करना पड़ा, मार्जिनलिटी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका टेंडेंसी क्या कि और ज़्यादा खरीद लेना चाहिए क्योंकि प्राइस तो हमको कम पे करना पड़ रहा है, बेनिफिट हमको ज़्यादा मिल रहा है, तो हमको और ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए. और हायर यूनिट्स पे क्या हो रहा है? MU इज लेस देन P. इट मीन्स मार्जिनलिटी विच ही गेट्स इज लेस देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. सो द कंज्यूमर कैन इंक्रीज हिज यूटिलिटी बाय डिक्रीजिंग द कंजम्पशन. तो अब ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से OQ ही कंज्यूम होगा हमेशा हमेशा. एंड दिस वाज फॉर वन कमोडिटी केस. नाउ वी टेक द टू कमोडिटी केस. और टू कमोडिटी केस में जाने के लिए सबसे पहले लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पता होना चाहिए. सो नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी? द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट a utility maximizing consumer will allocate his income among various commodities in such a way that the last marginal utility of the last rupee spent on each commodity is equal. एक कंज्यूमर तभी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा जब वो अपने सारे कमोडिटीज में उसके मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से प्राइस पे करे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो रुपी वो स्पेंड कर रहा है उसका मार्जिनल यूटिलिटी सब में बराबर होना चाहिए. It means that when a consumer consumes two or more commodities, he will be in equilibrium when he or she spends on both commodities in such a way that the price paid for the commodities is proportional to the marginal utility which it derives from the commodity. Now let us understand why. क्यों ऐसा होगा कि वो दोनों में इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का ही रहेगा यहाँ पर? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग को दो कमोडिटी को लेना पड़ेगा, X और Y का. To understand why a consumer maximizes his total utility when the marginality of the last rupee spent on each good is equal, we should consider a consumer who receives a greater marginal utility from the consumption of X than the consumption of Y. अब सपोज कर लो X और Y दो कमोडिटी है. अब अगर कोई कंज्यूमर को अगर X से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है रुपया स्पेंड करने से इन कंपेयर टू Y, तो वो हमेशा क्या करना चाहेगा? X को ही ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेगा. वो हमेशा X की तरफ खींचा चला आएगा. ठीक है. तो सपोज कर लो अगर कंज्यूमर को X से 5 यूनिट्स का यूटिलिटी मिल रहा है और Y से 3 यूनिट्स का, तो देखो डिफरेंस जो है 2 यूनिट्स का पड़ जाता है. तो अब वो क्या करेगा? इस 2 यूनिट की वजह से वो क्या करेगा? Y से X में आने चाहेगा. मतलब Y का कंजम्पशन कम करके X का कंजम्पशन बढ़ाएगा. Y का कंजम्पशन कम करना चाहेगा और X का कंजम्पशन बढ़ाएगा. ठीक है. सो ही विल गेन बाय 2 यूनिट्स. सो यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर विल कंज्यूम more units of Y, more units of X and less units of Y. अब अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को लेके चले तो X का मार्जिनलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और Y का मार्जिनलिटी बढ़ जा रहा है. क्यों? क्योंकि Y का कंजम्पशन कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर कंज्यूम होगा तो मार्जिनलिटी राइज हो जाएगा, और नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम अगर बढ़ेगा तो मार्जिनलिटी कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है? बैलेंस होने का कोशिश हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि दोनों अपोजिट फोर्सेज है. मार्जिनल यूटिलिटी का जो फोर्सेज है वो दोनों अपोजिट फोर्स है. तो अल्टीमेटली क्या होगा? दोनों बैलेंस होना चाहेगा एक जगह पर.
So ultimately, the consumer will come at a point where there is no further allocation, or he will not gain anything by further allocation, and that point will be MUX by PX is equal to MUY by PY. उस पॉइंट पे ही कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम मैक्सिमम होगा. ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम में अभी नहीं आए, ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि उतना नहीं मांगे, तो अगर ये याद नहीं भी होता तो कोई बात नहीं है, इसका खाली डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन याद करना ज़रूरी है. सो इसका एक्सप्लेनेशन का एक तरीका भी है, एक और तरीका है समझने का, एक सम्स के थ्रू समझाएंगे अभी. So in light of the above explanation, the law of equity marginal utility can be written as follows. The consumer will spend his money income on different goods in such a way that the marginal utility of each good is proportional to its price. In other words, the consumer will be in equilibrium while consuming X and Y when MUX by PX is equal to MUY by PY. Now let's take a real life example. By taking a real life example, suppose there are two goods, apples and mangoes, which a consumer wants to consume with his money income. Now given the money income of the consumer is 750, अगर consumer का money income 750 है और प्राइस ऑफ एप्पल 50 और प्राइस ऑफ मैंगो 75 है, तो अब हमको ये देखना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम परचेज में कब रहेगा. अगर कंज्यूमर का मनी इनकम 750 है और प्राइस ऑफ एप्पल इज 750 एंड प्राइस ऑफ मैंगो इज 75, देन व्हाट विल एट व्हाट लेवल ऑफ कमोडिटी ही विल बी इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का कंडीशन पहले यहाँ पर देख लेते हैं. MUA by PA is equal to MUM by PM. MUA is the marginality of apple, MUM is the marginality of mangoes, PA is price of apples and PM is price of mangoes. Now अब ये टेबल है यहाँ पर, units of apples, units of mangoes, marginality of apples, marginality of mangoes, marginality of apple by PA, that is price of apples, and marginality of mango by PM, that is price of mangoes. अब यहाँ पर ये जो marginality का टेबल है ये पूरा assumed टेबल है, एक इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, ये एक assumed टेबल है. Now what we have to do is we have to find out MUA by PA. Now how we will find out MUA by PA? MUA by PA can be found out by dividing all the marginal utility with the price of apples. Marginal utility of apples with the price of apples, that is 450 by 50, 400 by 50, 350 by 50. All things are to be divided by 50. We will get 9875643. Similarly for mangoes also, MUM by PM, that is MUM is 750 by 75, that is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी के हिसाब से हमको चलना है, तो सबसे पहले 9 में इक्वल हो रहा है. 9 में इक्वल हो रहा है मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ मैंगोज. फिर हो रहा है 8 में, दैट मीन्स 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज. फिर हो रहा है 7 में, दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज. ऐसे करके सब चीज़ का निकालना है मेरे को. जब जब ये इक्वल होगा, सबसे पहले 9 तो 1 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 2 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, फिर है 8 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 3 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, फिर है 7 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, फिर है 6 4 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, फिर है 7 6 यूनिट्स ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ मैंगोज, एंड लास्ट इज 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स एंड 7 यूनिट्स ऑफ मैंगोज. अब हर एक का टोटल एक्सपेंडिचर डिसाइड करना है. टोटल एक्सपेंडिचर निकलेगा कैसे? सिंपली मल्टीप्लाई द यूनिट्स ऑफ एप्पल्स विद द प्राइस एंड मल्टीप्लाई द यूनिट्स ऑफ मैंगोज विद देयर प्राइस. सो 1 into 50 प्लस 2 into 75, फिर नेक्स्ट इज 2 into 50 प्लस 3 into 75. ऐसे करके सबका निकल जाएगा. सो लाइकवाइज वी विल गेट ऑल द कॉम्बिनेशन बंडल्स. वी हैव गॉट ऑल द कॉम्बिनेशन बंडल्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर. अब टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर हो रहा है 700 पे, और 825 कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंज्यूमर का इनकम बताए थे 750 था. कंज्यूमर का इनकम 750 था, तो 825 पॉसिबल नहीं है. सो द हाइएस्ट लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑकर्स ऑन 700.
that will be the equilibrium position. It means 5 units of apples and 6 units of mangoes is the equilibrium position for any consumer. So a consumer will maximize his total utility when he consumes 5 units of apples and 6 units of mangoes. तो इस हिसाब से टोटल यूटिलिटी का कंजम्पशन निकला है. अगर इसमें अभी भी कहीं डाउट्स होता तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर दिया वही है. ठीक है. सो दिस इज द equilibrium level of consumption for any consumer. So with this we have completed the marginal utility analysis. So this is the end of part 1. So part 1 यहाँ पर end होता है और part 2 जो है वो होगा indifference का आपका, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. So till then enjoy your vacation at your home and be safe at home. Part 2 will be continued in the next video.